कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाँ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया 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 कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल ज्वाइन कर लिया तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए नमस्कार मैम नमस्कार प्लीज स्टार्ट मिस्टर मनोज चले नो सर इज नॉट ओके उमेर स्टॉप उमेर सर ने भी ज्वाइन नहीं किया ओके सो उमेर नाउ यू मे स्टार्ट बेटा क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं Namaskar, one and all present here. With these beautiful lines, I, Umil, grant a very warm welcome to all the amazing parents, Honorable Principal Ma'am Anupma Bhardwaj, our alumni Vivek Rana, respected teachers, and my very dear friends in today's program. It is truly a proud moment for us to be celebrating a 75th Independence Day on 15th August 2021. Before proceeding towards our program, let's take the blessings from the Almighty. I request you all to take position for the recitation of Namokar Mahamantra. Om Namo Siddhaya
Thank you very much. Keep your heads down. Namaskar to all present here. I hope you all are aware that CBSE has declared class 10th result today. And I'm very proud and elated to announce that all our students have done very well in exams. A total of 189 students appeared for the exam, and all of them have passed in flying colors. Dear friends, I am very, very proud to announce that Reniman is school topper with 97.6% of marks. Reniman with 97.6% of marks. Prachi Seni got 96.2% of marks. And Shubh Gupta, Parth Mishra, and Archita got 94.8% marks each. I request all of you to join their hands for our dear and very, very hardworking students. Congratulations to proud parents, teachers, and students. Thank you very much. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Now is the most awaited time to unfurl the load upon your excitements. Today, students of class 10th Marigolds and 10th Sunflower are going to present Andaman Nicobar and Lakshadweep Island and acquaint you all about its history, specification, strength, future of island and much more. तो आइए आगाज करते हैं उस जमीन के टुकड़े का जिसके लिए हिंदुस्तानियों ने अपनी देह, आत्मा, वजूद, अपने अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े करा लिए और उसकी मिट्टी का कर्ज सर्वोच्च बलिदान देके अदा किया। जल और जंगल से घिरी इस जमीन की अदायगी क्या होती है, आइए देखते हैं। With these thought-provoking words, I would like to call Subhanshi for the further proceedings. Over to you. Thank you so much, Umar. तो आइए आपको बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना जहाज, बिना किसी खर्चे के ले चलते हैं माँ भारती के उस हिस्से में जहाँ मानव की संस्कृति का जन्म हुआ, वह सभ्य हुआ और ना जाने कितनी सभ्यताओं का गवाह बना। जी हाँ, उसे आज अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। मेरे देशवासियों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का संबंध हमारे पौराणिक कथाओं रामायण से भी मिलता है। There are so many theories about the origin of these islands and advent of man here. We get some references from Ramayana, the older epic of India. Lord Rama wanted to bridge the sea in order to recover Sita, who have been adopted by King Ravan of Lanka. The Malayas call the area the islands of Andaman. यही अंडमान आज अंडमान के नाम से जाना जाता है। पर आप जानते हैं, एक दौर ऐसा भी आया जब यह धरती थर्रा उठी। अंग्रेजी हुकूमत ने माँ भारती के सपूतों के लहू को यहाँ की मिट्टी में सानकर सेलुलर जेल बना दिया और दरिंदगी की नई इबारत लिखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कालापन की, एक ऐसी सजा जो इंसान के साथ उसके हौसले को भी निस्तनाबूद कर देती थी। फिर भी जो वर्षों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोलू में जो तेल पेरते दत्त शुक्ला सावरकर की बलिदानी। सुना है देश के लिए जो लोग शहीद हुए उनसे भारत माता आज भी रोज मिलती है। काश हम 21st सेंचुरी के बच्चे भी उनसे मिल पाते। काश भारत माता आज की पीढ़ी को बताती कि क्या होती है मातृ वतन से मोहब्बत और क्या होती है शहादत। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे
जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम महावीर बुद्ध ईसा सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। ऐसा कभी हुआ है कि बच्चे माँ को बुलाएं और माँ ना आए? मैं भारत माता अपने देशवासियों के समक्ष खड़ी हूँ। मुझे खुशी हुई कि आप मुझे इतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं कि ये आजादी कैसे आई? अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले मेरे आंचल में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। आज मैं यहाँ ऐलान करने आई हूँ कि मेरे दामन के नीचे बैठे सभी लोगों का इस आजादी में एक बराबर सहयोग रहा है। मेरी आंखों ने 1857 की क्रांति से लेकर विभाजन तक की पीड़ा देखी है, पर आज मैं उन लोगों को आपसे जरूर मिलवाऊंगी जिन्होंने अलग थलग से पड़ी मेरे इस हिस्से यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की मिट्टी पर भी अपनी शहादत की निशानी छोड़ दी। तो आइए मिलिए उस वीर सपूत से जिसने अपना सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया, विनायक दामोदर सावरकर। इंद्रजमी जंब पर वादवसु अंब पर रावण स रंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। जय शिवाजी। मैं विनायक दामोदर सावरकर आज की युवा को देखकर अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। वैसे आप लोग क्या देख रहे हैं? मेरे शरीर से बहता ये लहू, मेरे कटे बदन से रिश्ता रक्त या मेरे शरीर पर लटकी इन बेड़ियों को? साथियों, ये तो तोहफा है देश से मोहब्बत करने का। इस अंग्रेजी हुकूमत को लगता है कि इन यातनाओं से हमारे हौसले टूट जाएंगे, लेकिन ये नादान है। इन्हें नहीं पता यह हिंदुस्तान है, गुरुओं की धरती, जहाँ एक आदर्श विद्यार्थी के लिए यहाँ के शिक्षक ऋषि दादीज की तरह अपनी हड्डियों का वर्ज बना सकते हैं, तो हम देश के लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते हैं? आप जानते हैं, मुझे यहाँ नासिक षड्यंत्र और ऑपरेशन कोर्ट केस में दोषी पाने के लिए लाया गया है। मैं क्रांतिकारियों को बॉम्ब बनाना सिखाता था। ये मुझे कोल्हू में बैल की जगह जोत देते हैं। एक वक्त का खाना, थोड़ा सा पीने के लिए पानी, पर कोड़े खा खा कर कटा बदन जब समुद्री हवाओं से टकराता है तो नमक जलन नहीं मलहम का काम करता है। देश की नई पीढ़ी, मुझे वचन दो, जिस तरह मैंने अपनी भूमिका निभाई है, आप सभी भी अपने फर्ज को आखिरी सांस तक निभाएंगे। हे भारत माता, तेरे चरणों में मैं पहले ही अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। जय हिंद, जय हिंद। तुम अमर हो विनायक दामोदर सावरकर, तुम अमर हो। हिंदुस्तान की आवाम तुम्हें आज से वीर की उपाधि देती है। आइए आपको मिलाते हैं अंडमान जेल में रहने वाले योगेंद्र शुक्ला से। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। कहते हैं एक उम्र होती है दुश्मन से लड़ भिड़ जाने की, कहते हैं एक उम्र होती है जीवन में कुछ कर जाने की, लेकिन है ये सब लफाजी, कोई उम्र नहीं कुछ करने की। गर बात वतन की आए तो हर रुत होती है मरने की, हर रुत होती है मरने की। मैं योगेंद्र शुक्ला, बिहार के भोजपुर की धरती से काला पानी तक मेरी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। मेरे नौजवान दोस्तों, बचा के रखना इस शहादत की निशानी को जो तुम्हें दी जा रही है। जानते हो मेरा कसूर क्या है? मैंने ही 1925 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत की थी, जहां आजादी के मायने सबके लिए एक थे। मैं दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भगत सिंह के साथ था, जहां हमने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हमारे लोग, हमारी ही हुकूमत हो, जहां अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता कुछ चुनिंदा नेताओं के पास ना आकर सबके पास एक समान रूप से विभाजित हो, अर्थात
हिंदुस्तान की हुकूमत में लोकतंत्र भी और समाजवाद भी। मैंने ही भगत सिंह को टाउन हॉल की प्लानिंग और नक्शा बना के दिया था। मैंने ही उन्हें बताया था कि बम खाली जगह पर मारकर बहरी हो रही ब्रितानवी ताकत को गहरी नींद से उठा दो। और उन लड़कों ने क्या खूब किया। काला पानी में लाकर यह सोचते हैं कि हमारे लक्ष्य से हमें पीछे कर देंगे। अंडमान की धरती में मेरे वतन का हिस्सा है। इसकी मिट्टी मुझे ताकत देती है कि मैं जिंदा रहूं और आने वाले लोगों को बता सकूं कि हमने आजादी से मोहब्बत की है और तुम भी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। भारत के वीर सपूतों, तुमको नमन हमारा है। शौर्य की गाथा से इतिहास लिखा तुम्हारा है। अपनी वीरता से तुमने चट्टानों को भी रौंद दिया। अवरोधक पथ पर जितने आए पैरों तले कुचल दिया। तो आपने देखा अंडमान निकोबार की धरती पर किस तरह से योगेंद्र शुक्ला ने बड़ी ही बहादुरी से अंग्रेजों के जुल्म का डट के सामना किया और अपने नाम को इस खूबसूरत सी वादियों में मिला दिया। तो आइए आपको अपने एक और बलिदानी सपूत से मिलाते हैं, जिसको देखते ही लगता है कि क्रांति की कोई मासूम सूरत है तो बटुकेश्वर दत्त ही हो सकता है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं बटुकेश्वर दत्त। जानते हो बच्चों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी फांसी से पहले लिखी चिट्ठी में कहा था कि क्रांतिकारी सिर्फ वो नहीं जो अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, बल्कि उन सबका योगदान भी अतुलनीय है जिन्होंने जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार सहा था। उनमें से एक मैं भी हूँ। आप जानते हो कि मुझे काला पानी की सजा क्यों मिली? भगत सिंह के साथ मिलकर टाउन हॉल में बम के धमाके से अंग्रेजों की तानाशाही को ललकारने वाला क्रांतिकारी मैं ही था। मैंने आगरा तथा कानपुर के सभी युवा क्रांतिकारियों को बंदूक चलाना सिखाया और इसके साथ ही मैंने असला बारूद के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की जानकारी दी थी। यही नहीं, क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई आगरा में एक असला फैक्ट्री का खाका भी मैंने ही तैयार किया था। अरे एक बार तक अंग्रेज अधिकारी ने मेरे बारे में यह तक भी कह दिया था कि ये इतना खतरनाक बागी है कि मुल्क के लड़कों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा, इसलिए इसे तो काला पानी की सजा दो। सजा सुनते ही मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए नहीं कि मुझे सजा मिली, बल्कि इसलिए कि मैं अपने साथियों की तरह भारत माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। अब सभी अब मुझसे वादा करो कि जब तक जीवित रहेंगे इस मिट्टी का कर्ज और फर्ज कभी नहीं भूलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपको क्या लगता है बच्चों कि सिर्फ हमारे देश के वीर सपूत ही इस मुहिम में आगे थे? बिल्कुल नहीं। तो आइए आपको मिलाते हैं लक्षद्वीप की उन क्रांतिकारी महिलाओं के तेवर से जिन्होंने लक्षद्वीप की जमीन और जल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। पुरखों की इस धरती पर आज तक चैन और अमन सब था, ना जाने ये फिरंगी क्या चाहते हैं। सुना है शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान रंगपट्टनम की संधि और युद्ध दोनों हार गए हैं और लक्षद्वीप से गए हमारे कई सैनिक भाई भी मारे गए हैं और अब उनकी ललचाई नजरें लक्षद्वीप पर हैं। लेकिन ये गोरी चमड़ी वाले ये भूल गए हैं कि लक्षद्वीप एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये संस्कृति है जो हिंदू राजा चिराग के समय से आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान की शहादत बेकार नहीं जाएगी। लक्षद्वीप की शाही औरतें शमशीर थाम लेंगी, या तो लक्षद्वीप आजाद रहेगा या यहाँ की औरतें कुर्बान हो जाएंगी वतन के लिए। आमीन। सही कहा देवी आपने। कैवरती की कमान मैं खुद संभाल लूंगी। अब वक्त आ गया है, हम अपने बाप भाई का बदला लेंगे और इन फिरंगियों को बता देंगे कि लक्षद्वीप की जमीन सिर्फ आजाद लोगों की है, जहां इंसान और उसका वजूद
सिर्फ चंद सोने के सिक्के के मोहताज नहीं हैं। आने वाली नस्लें हमें याद रखें या ना रखें, लेकिन यहाँ की आबो हवा में हम फिरंगियों की दुर्गंध नहीं आने देंगे। आमीन। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि विदेशी दरिंदों ने हमारी जमीन और जल पर आक्रमण किया। इससे पहले पुर्तगाली और 5 मिनट डच लोगों ने गलती की थी, लेकिन हमने उन्हें खदेड़ दिया था। शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। मैसूर की लड़ाई का कर्ज अब हम औरतें और साहिबजादे लेंगे। सुना है इन फिरंगियों का सूरज कभी अस्त नहीं होता, लेकिन जब तक लक्षद्वीप की औरतें जिंदा है 1 इंच भी नहीं मिलेंगी। मैं खुद मिनी गय और अगाती की कमान संभालूंगी। जब तक लहू का कतरा इस शरीर में होगा, शमशीर अंग्रेजों का संकलन करती रहेगी। या खुदा, बस हमारी हिम्मत ना टूटने देना। आप सभी ने देखा बच्चों, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। आज आप लोग अपनी भारत माता को वचन दो कि आपके सामने जो भी फर्ज होंगे उन्हें जरूर पूरा करेंगी। यही आज के समय की सच्ची देशभक्ति होगी, क्योंकि आप ही तो मेरे भविष्य का भारत हैं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता, हम सब की तरफ से आपको प्रणाम, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि देश की आन बान शान कभी कम नहीं होने देंगे। Let's begin our next segment with the beautiful Nicobarese dance. तो चलिए अब आपको मिलाते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के यूनिक स्पेसिफिकेशन और स्ट्रेंथ से। सफेद रतीला समुद्र तट, प्रचुर प्राकृतिक आकर्षण और शांत वातावरण लक्षद्वीप को एक पॉपुलर अट्रैक्टिव प्लेस बनाता है। यहाँ दुनिया भर से पर्यटक घूमने आते हैं। लक्षद्वीप को घूमने का सबसे अच्छा समय मई और सितंबर के बीच के महीने हैं। उस वक्त मौसम सुहावना होता है और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए अनुकूल होता है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और कोई भी सर्फिंग, तैराकी, कैनोइंग, स्नॉर्कलिंग आदि जैसे रोमांच में भाग ले सकता है। कोलकली एंड परिचकली क्षेत्र में 2 लोकप्रिय लोक कला रूप हैं। वह मिनकाएं को छोड़कर सांस्कृतिक परिवेश का एक अभिन्न अंग है, जहां लावा सबसे लोकप्रिय नृत्य रूप है। कुछ लोक नृत्य उत्तर पूर्वी भारत के समान है। गरबा, भांगड़ा, लावणी जैसे सामान्य लोक नृत्य शैलियों को खुशी और फेस्टिविटी को व्यक्त करने के लिए पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ शामिल किया जाता है। For marriages, Upana is a very common feature. A song sung by a lead singer and followed by a group of women. सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस है। तो आइए आपको लक्षद्वीप के बिंदिया डांस की एक झलक दिखाते हैं। एजुकेशन की करें तो 20वीं सदी के मध्य से लक्षद्वीप
लक्षद्वीप में शिक्षा में अत्यधिक सुधार हुआ है। द्वीपों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है। भारत के अन्य राज्यों और क्षेत्रों की तुलना में लक्षद्वीप में लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। The principal languages of Lakshadweep are Malayalam, Dvibhasha and Mahi, which is similar to Old Sinhalese. Some people also speak Hindi. लक्षद्वीप की पारंपरिक पोशाक काफी सरल है, जिसमें पुरुष सफेद या रंगीन लुंगी पहने हुए हैं, जिसके सिरे एक साथ सिले हुए हैं, and women wearing kachi, the unstitched version around their waist, tied in place with silver threads. Coconut palms are the agricultural mainstay of Lakshadweep. Copra is produced and exported to the mainland. Fishing also forms the major segment to the territory's economy, with tuna as the primary catch. You know that you can also enjoy your vacations here. We are going to share some tourist places which you can visit in Lakshadweep. Bangarang. It is a tiny teardrop-shaped island. इस द्वीप पर स्थित पर्यटन स्थल मेहमानों को आधुनिक जीवन के दबावों और तनावों से मुक्त करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। अगत्ती लक्षद्वीप सबसे खूबसूरत लेगून में से एक है। इस आइलैंड पर एयरपोर्ट बना है। विमान से जैसे ही कोई लैंडिंग के लिए पहुंचता है, one gets a breathtaking view of the airstrip on the island. अगत्ती is the virtual gateway to the islands. इंडियन एयरलाइंस अगत्ती के लिए उड़ान संचालित करती है, जिससे यह लक्षद्वीप में सबसे सुलभ द्वीपों में से एक बन जाता है। A water sport institute functions on the island. Kadmat has emerged as one of the most beautiful life centers in India. Minicoy is isolated from the main group of islands and lies about 200 kilometers south of the northern group. Kavaratti is the headquarters of the administration and the most developed island. The beautiful and calm lagoon offers an ideal spot for water sports, swimming and snorkeling. The multicolor underwater life in the lagoon can be viewed through glass bottom. Boats, kayakers, windsurfers and sailing boats are available on hire. Dolphin Dive Center उन लोगों के लिए एक आकर्षण है जो स्कूबा डाइविंग पसंद करते हैं। Now it's time to know about Andaman and Nicobar Islands. Corals are charismatic, cherubic beings with life, churning out secretions of ripe calcium carbonate white. Snorkeling in the waters of Andaman Island, seeing little rocks of corals perched on the seabed. Snow castles like tender reefs that shed light, sensational, attractive and wonderfully bright. The most widely spoken language on the islands is not Andamanese or Nicobarese. The largest living arthropod in the world, Virgus latro or robber crab, resides here. The 20 rupees note depicts a scene from Andaman and Nicobar Island. The only active volcano in India, the barren island, is present in Andaman Islands. Jalhans, India's first commercial seaplane, was launched in Andaman Islands. Rose Island was once an important headquarters for British and Japanese. Kachal, a tiny island near Nicobar, received the first sunrise of millennium, whose scene is also there on our 3 rupees stamp of India. Baratang Island is the only place in India with mud volcanoes. Some genetic studies suggest that the Andamanese were isolated from other populations over 30,000 years ago. The earliest archaeological evidence, however, dates back to some 2,200 years. Andaman and Nicobar was occupied by Japan for 3 years during World War II. Tribe Jarva lives on the remotest place on earth called the North Sentinel Island, located to the north of the Andaman and Nicobar. ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही है नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है, यह विश्वास अमर है। Every person is tinkering about what happens in future. So to acquaint you that, I would like to begin the next segment. जियो जियो जय हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, धीर वीर गंभीर अचल।
फ्यूचर यानी भविष्य। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश, गांव या जाति का भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज मैं आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के फ्यूचरिस्टिक गोल से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। Islands might be 100 kilometers away from the Indian mainland, but their advancement without bringing the Indian overall evolution. Andaman and Nicobar Island can be seen as an Indian Hong Kong. Yes, it is true. Prime Minister has addressed the spread of optical fiber that will be the new leader of communication and new dimensions of Indian Act Fast policy. It will also help in the expansion of airports and commercial seaports. MNCs are looking for an alternative location that has free trade and also stable political system. Means Andaman and Nicobar can be as a quarter of world oil ship pass through here. If India strengthens its military, then China's Dadagiri can be controlled through Quad. USA also increases its importance by doing recent naval exercises with Indian Navy. Now, India has a new opportunity to develop a demand region and can also rename it as an Indian Hong Kong. The tourists visiting islands have treasured their isolation as a way to forcefully cut off from the social media and messaging glare and enjoy the natural peace and beauty. But they can't be a reason to stop development. Government is also planning to improve the air connectivity between these islands with the rest of the country, and 300 km of national highway is to be made to make these islands more closer to India. The plan also entails the development of transshipment terminal with Greenfield International Airport. Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. ये बात महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी तरीके से कही है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य में अंडमान एंड निकोबार की परियोजना का संबंध सतत विकास से हुआ है। नीति आयोग is busy planning the sustainable development of 5 islands, that is Smith, Rose, Avis, Long and Little Andaman. The Island of Development Agency was established in 2007. Indian-Japan collaboration to create Smart Island. Though the details of these projects are not fully clear, Port Blair could just about be aligned to develop like Delhi and Tokyo into a smart city. It could very well be a line of Paris, redeveloping the renewing island. अंडमान एंड निकोबार को हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है सो दैट वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेड्स को आगे फ्यूचर में इंक्रीज कर सके, लाइक इन कोकोनट बेस्ड, organic based and sea based products. Government has also brought more education facilities, colleges, healthcare systems so that future generation ज़्यादा से ज़्यादा literate and healthy हो and they have better environment to live in. Transshipment hub is proposed in Andaman so that Andaman other groups of island की help कर सके as center of blue economy, maritime and startup hub. हालांकि लक्षद्वीप इंडिया के मैप में बहुत छोटी बिंदु के रूप में दिखाई देता है, but it is a sparkling diamond and emerald studded jewel adorning India's southwestern frontier. If we look into the future, Lakshadweep could offer a secondary base for maritime cooperation. Government of India ने लक्षद्वीप की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत सारे प्लान्स रेडी करे हैं. It is planned to develop Lakshadweep like other tourist islands such as Maldives and Mauritius. Floating villas in the ocean just like other tourist islands will be made in the near future. Also, the solar project has been started where solar plants are planned to be set up with a large amount of battery backup. जब सफेद समुद्र तट, इसके तटों को धोने वाले लैगून और वो गहरा नीला समुद्र एक दूसरे के साथ सहजीवी रूप से जुड़े हुए हो तो Lakshadweep is no longer the tiniest of India's territories, but the largest. Along with the new naval base in Karwar on India's west coast, Lakshadweep का उपयोग पश्चिमी हिंद महासागर में भारत पर समुद्र नियंत्रण दर्शाने के लिए किया जाएगा. The island will receive attention because of the proximity to the energy-rich Western Indian Ocean. और यह भी संभव है कि लक्षद्वीप, along with the new naval southern command in Kochi, could be converted into tri-command facilities. The best way to predict the future is to create it. Well said by Abraham Lincoln. The seed of development has already been sown. New and bigger airports are in making. The main foundation has been laid. Because Andaman Nicobar और लक्षद्वीप आइलैंड्स भारत के टूरिज्म के भविष्य हैं. और जितने छोटे द्वीप हैं उतना ही बड़ा इनका इतिहास और इनकी धरोहर है.
हम अभी भी इन आइलैंड्स के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। The depth of the oceans are yet to be explored. The peaceful environment and the relishing climate will definitely make us feel blessed to experience the heaven on earth. तो आइए, let us all dive into the never-ending oceans of the beauty of Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands. ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की थी शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, सदा अपने दिल में बसाए रखना। Well, I guess the future is not so far. My friends have surely amazed you from their performance. Now I request our alumni, Vivek Rana from the batch of 2011. He is a BTech in Electronic and Communication Engineering, and he is currently working at Make My Trip as a Senior Information Security Analyst. I would like Mr. Vivek Rana to share his feelings with us. Over to you, sir. A very warm namaskar to our principal, ma'am, Anupama Bhardwaj, respected teachers, energetic JMVians, and the praiseworthy parents. I mean, it's not easy to organize a function at this level, basically a series of functions, a series of episodes in this pandemic, but the JMVN team has done exceptionally well in doing so. I'm feeling really blessed and honored that I'm witnessing this unforgettable program. I appreciate the time, efforts, and skill of all the participants and the teachers who are lending their helping hands to these budding stars. I'm feeling very happy, to see the faces of all my teachers that I saw maybe 10 or 11 years back. I want all the students and the parents to be assured that JMV has one of the best and qualified teachers. And if you want to see some examples, then go and watch the last 10 minutes of alumni series of this function. You will definitely find some exceptional and successful stories. I would like to extend my gratitude towards Ruchi ma'am and the entire JMV family, which allowed me to join this e-celebration of the 75th Independence Day. At last, but not the least, I want to share a small couplet with you all. कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। Thank you, वंदे मातरम। वंदे मातरम, thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words. नमस्कार। आँखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहें उससे हकीकत नहीं खुलती, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, निगहबान है आंखें। With these lines, I conclude today's program, and we will see you tomorrow at the same time. Until then, Jai Hind, Inqilab, Zindabad, 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 आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा दरिया रे नीले आसमाने के तले है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा दरिया रे नीले आसमाने के तले है।